Very good evening, children. Today we'll focus on properties of definite integral. Very important properties, and it makes the sums very easy. 90% chances that always in JEE Mains also sums are asked on these properties. Okay. So let us do the first property. Integration of a to a f of x dx. You will get the answer as 0. If I integrate any function between the same intervals, I get the answer as 0 because no area will be shaded. Then integration of a to b f of x dx can be written as minus b to a. If I change the order of integral limits, I get negative sign. I will get negative sign. Okay. Now third and fourth, very most important property, whose sums also I will be discussing here. If it is 0 to a f of x dx, if the limits are from 0 to any number a f of x dx, this is nothing but 0 to a f of a minus x dx. Basically what we are doing, this function is integrated between 0 to a. So I am shifting this function. If I shift the function, still the area will remain the same. So मैं x को a minus x से replace कर रहा हूँ. When I teach you sums, you understand it is very important property. If in definite integration, if you are not getting any idea, think this as the first property to be used to make the sum easy. Okay. Then if it is a to b f of x dx, a to b f of x dx, it can be written as a to b. I'll replace my x by a plus b minus x. I'll replace my x by a plus b minus x. So this is special case of this. ये 0 है, actually 0 plus a minus x आया था. So that is a to b, a plus b minus x. Now to identify the sums are based on these two properties, let us see. As and when I go on solving sums, focus on the question. तो आपको समझेगा. So I take the first one. Integration of 0 to pi by 2 cube root of sin x dx upon cube root of sin x plus cube root of cos x. क्वेश्चन देख के समझ में आता है. I cannot rationalize क्योंकि क्यूब रूट है. I cannot get rid of denominator under any circumstances क्योंकि तो क्यूब रूट है. So no hints. So what I will be doing, I will be naming this as my equation 1. Now again write this as this property. क्या करना है, x को a minus x से replace करना है. What is my a over here? Pi by 2. My integration becomes 0 to pi by 2 cube root of sin, मेरा a कितना है, pi by 2, ये हो जाएगा pi by 2 minus x dx upon cube root of sin, again x को replace करेंगे, pi by 2 minus x cube root of cos pi by 2 minus x. ठीक है. Now we know that sin pi by 2 minus theta क्या होता है, cos theta. So my I becomes 0 to pi by 2 cube root of cos x dx upon, ये भी cos हो जाएगा, so cube root of cos x plus ये हो जाएगा cube root of sin x. इस final expression को I'll give as equation number 2. Now after doing this, I will add equation 1 and 2. What will I do? I will add 1 and 2. So left side में क्या आएगा, I plus I, that is 2i. क्या होगा, 0 to pi by 2 cube root of sin x upon cube root of sin x plus cube root of cos x plus इसको ऐड करेंगे, अगेन 0 to pi by 2
क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स, इसको उल्टा लिखा तो भी चलेगा, प्लस साइन है, साइन एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, लिमिट्स दोनों के सेम है, सो आई कैन टेक कॉमन, तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाय 2। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, ऐड। ये आएगा क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स। करेक्ट। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो 2y क्या आएगा, 0 to पाई बाय 2 dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। कितना इजी हो गया देखो, सो x 0 to पाई बाय 2, सॉल्व करेंगे, ये पाई बाय 2 आएगा 2i, सो i कितना आ रहा है, पाई बाय 4। कितना आ रहा है, पाई बाय 4। ओके, नेक्स्ट सम चिल्ड्रन, 0 to पाई बाय 2 log ऑफ tan x, इसको भी i नाम देंगे। अगेन इट इज log है, log के अंदर tan x है। आई कैन नॉट थिंक ऑफ यूविल ऑल्सो कि log का डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा, ठीक है। और x को अगर v लिया, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, एवरी टाइम पावर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1, नाउ I'll replace every x by pi by 2 minus x, ये हो जाएगा log of tan pi by 2 minus x by the property of integration। tan pi by 2 minus theta क्या होता है, cot theta, तो हो जाएगा 0 to pi by 2 log of cot x, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगेन 1 and 2 को ऐड करेंगे, तो माय लेफ्ट साइड बिकम्स 2i और राइट साइड क्या आएगा, 0 to पाई बाय 2 log tan x प्लस 0 to पाई बाय 2 log cot x। लिमिट सेम है, इंटीग्रेशन कॉमन निकाल सकते हैं, तो 0 to पाई बाय 2 log tan x plus log cot x। so log a plus log b क्या हो जाएगा, log a b, तो 0 to पाई बाय 2 log tan x into cot x। tan into cot कितना होता है, 1, और log 1 कितना होता है, 0, है ना। सो 2i आएगा 0, therefore इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0, ठीक है। आया समझ में, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx। अगेन log आ रहा है, विल अप्लाई सेम प्रॉपर्टी, इसको इक्वेशन 1 देंगे, सो i 0 to पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, log 1 प्लस x को रिप्लेस करेंगे a माइनस x से। अभी कुछ फायदा नहीं हुआ, जस्ट आई कैन अप्लाई tan a माइनस b। लेट अस अप्लाई दैट, सो 0 to पाई बाय 4 log, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x dx। tan पाई बाय 4 कितना हुआ, 1, 0 to पाई बाय 4 log, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा, so 1 into 1 1 प्लस ये tan x, ये आएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। माइनस प्लस कैंसल, तो क्या मिला, log 2 अपॉन 1 प्लस tan x, ये हो गया 0 to पाई बाय 4
log 2/1 plus tan x, करेक्ट। ये किसकी वैल्यू है? I की है ना, किसकी वैल्यू है? I। अब इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू 0 to π/4 log a माइनस log b, है ना। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/4। ये देखो, I started with this, I came up with the same thing, तो इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या लिखेंगे? I। ये हो जाएगा I log 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा 0 to π/4 dx, ये हो जाएगा माइनस I, कहां से? यहां से। माइनस I यहां पर आया तो प्लस I, दैट इज 2I, dx का इंटीग्रेशन x, सो x π/4 से 0, therefore 2I is equal to π/4 log 2, therefore I is equal to π/8 log 2. Understood? Yes? Clear? 2 to 9, 11 minus x the whole square upon x square plus 11 minus x square. तो see, ये 9 plus 2 कितना हुआ? 11, तो इसका एडिशन माइनस x मुझे दिखाई दिया, तो दिस गिव्स मी अ हिंट दैट क्या हो रहा है, इस दो लिमिट्स का एडिशन माइनस x मुझे कहीं दिखाई दे रहा है। दिस शोज दैट आई हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी। व्हाट प्रॉपर्टी? आई विल रिप्लेस x बाय a प्लस b माइनस x। किससे रिप्लेस करेंगे? x को, देखो हाउ विल यू डू, आई विल रिप्लेस x को रिप्लेस करेंगे a प्लस b, 9 प्लस 2 11 माइनस x द होल स्क्वायर, है ना। x को रिप्लेस करेंगे 11 माइनस x, अगेन x को रिप्लेस करेंगे, है ना, ऐसे। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे फिर से। व्हाट विल आई गेट? 11 कट, माइनस इंटू माइनस प्लस x स्क्वायर, सो 2 to 9 x स्क्वायर dx। दिस विल रिमेन एज इट इज, इसको ओपन नहीं करना है। 11 कट, ये क्या आएगा? x स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अगेन आई ऐड 1 and 2, दैट इज ऐड 1 and 2, क्या मिलेगा? 2i। इंटीग्रल दोनों का सेम है, मैं पहले कॉमन निकाल लेता हूं। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सो राइट कॉमन x स्क्वायर प्लस, तो न्यूमरेटर क्या है? 11 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस इसका x स्क्वायर। अगेन ये और ये कट, क्या बचेगा? 1। तो मेरा 2i कितना आ रहा है? 2 to 9 dx, सो 2i हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x 2 to 9, सो 2i is equal to 9 minus 2, so 2i is equal to 7, i is equal to 7/2। अब ऐसे समझ में आंसर चेक कैसे करना है? हमारा आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 9 minus 2 7 divided by 2। आया समझ में? Now same sum, one you will try on your own. I'll just write the question to explain you. Cube root of sec x dx upon cube root of sec x plus cube root of cosec x। Again limit 0 to π/2 है, जैसे मैंने साइन के लिए किया था सेम वैसा आप इसके लिए करोगे। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, 0 to π/2 1/1 प्लस क्यूब रूट ऑफ tan x। तो यहां पर पहले tan को लिखेंगे sin अपॉन cos, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स लाइक द फर्स्ट सम। अंडरस्टूड? नाउ चलो अगेन लुक एट बोथ दी सम्स। 1 माइनस 0 कितना होता है? 1 माइनस t नजर आ रहा है। 3 माइनस 0 कितना हुआ? 3 माइनस x आई एम गेटिंग, सो आई विल गो फॉर द सेम स्टेप्स what we did for the previous sum. I'll replace
माई टी बाय 1 माइनस टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट 1 माइनस टी बराबर, तो ये 1 कट कितना हो गया प्लस रूट टी, तो ये हो गया 0 to 1, दिस आई कैन ओपन, सो 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर रूट टी dt। देखो एक प्रॉपर, दिस कुड नॉट हैव बीन मल्टीप्लाइड विद दिस, इसलिए इसको गायब किया मैंने। मोमेंट आई गेट ऑफ दिस, नाउ इजीली दे कैन बी मल्टीप्लाइड लाइक अलजेब्रा, तो क्या आएगा 0 to 1 t रेज टू हाफ माइनस 2, इसका 1 इसका हाफ 3/2 प्लस इसका 2 इसका हाफ t रेज टू 5/2 dt। ठीक है, अब तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसका आएगा t रेज टू 3/2 यह आएगा t रेज टू 5/2 यह आएगा 7/2 पूरे को 0 से लेकर 1 तक बराबर। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, आपको आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 t रेज टू 3/2, 4/5 t रेज टू 5/2, 2/7 7/2। सेकेंड पार्ट 0 है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ये कितना है 1, तो आंसर क्या आएगा 2/3 माइनस 4/5 प्लस 2/7, इसका आंसर आप निकालो कितना आता है। ठीक है, यस। अगेन इसको वैसे रिपीट करेंगे, आई विल रिप्लेस x बाय, किसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, बायनॉमियल एक्सपांड किया, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, सो आई कैन नॉट इंटीग्रेट इनफाइनाइट टाइम्स, so I want to get rid of this power, so I'll replace x by 3 minus x, so x by 3 minus x, ये 5/2। ठीक है, ये 3 और 3 कट, ये हो जाएगा 0 to 3, इसको ओपन करेंगे तो 9 minus 6x प्लस x स्क्वायर, और ये बनेगा x रेज टू 5/2 dx। अब मल्टीप्लाई करो तो 0 to 3, 9 बाहर आ गया, x रेज टू 5/2 dx, 6 बाहर आ गया, x रेज टू 7/2 dx प्लस 0 to 3 x रेज टू 9/2 dx। This integration part you will do and get the answer. Thank you.